Good evening, everyone. Jai Hind. So, how are you all? Let's wait for sir. Okay, Ashwin has joined. Anish, Atharv, Ajay, Shiv. Welcome to the session. राम राम साहब, स्वागत है. So, आज सभी को ऐसा पता होगा सिद्धराम सर आ रहे हैं लाइव. Right. Just give me 1 minute. Let me add sir. Thank you, Shiv sir, for the compliment. Okay, Siddharth. I think there is some technical glitch. Sir, I have sent you the invite. Please accept it. Jai Hind, sir. Hi. Hi, Ankush. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm good. I'm good. I hope my voice is audible. Yes, sir. Yeah. It's So, clear, huh? yes, sir. So, other aspirants, please confirm whether we are visible and audible to all of you or Please not. confirm. Yeah. Please comments in the chats. Yeah. So, So sir. nice to see you after a long Yes, time, you sir. know. And long Yes, sir. Yes, time sir. we have decided to have the line. Yes, yes. How are I you? will request all the aspirants to please share this link so that maximum aspirants can listen to this beautiful session and we can have a lovely interaction with sir. Because it has been long time, I was trying to connect with sir and Yes. we kept this session on a weekend. Yeah. Yes. We will aim to make this session more fruitful for all the aspirants and जितने भी genuine doubts होंगे सबके. And Yes, sir. generally people feel कि sir ये question है कैसे पूछूं stupid. So questions are not stupid. Any question is question. You just have to, Yes, feel sir. free to express and answer. And of course, Ankush has been conducting a very nice sessions. I've been following him for a long time. So Yes, sir. let's hope we'll have a good interactive session. Right, sir. Right, Yeah. sir. We'll have a healthy discussion today. And with your permission, sir, we can start the Yeah. Of session. course. Of course. Yeah. Okay, fine. Don't be So, formal. good Just evening, ladies and gentlemen. We are coming live today for interaction with all the defense aspirants. So, like
I must welcome all the aspirants on this platform of SSB Tayari. And we kept this interaction to clarify all the doubts with all the defense aspirants. If Correct. you have any queries, any doubt related to entries or like that, you can ask those doubts at the end of the sessions, right? And if any question remains unanswered, so you can connect with sir and me after the session in the chat, right? Yes, So yes. yeah, yes, sir. So let me begin this session. Today we have Major Sidram sir, who is one of the Black Cat Commando of our prestigious armed forces, and he has served as a short service commission to the defense forces, and we just kept this session so that we can give you the insight of our defense, how what is the demand of defense forces and what type of candidates that SSB is demanding, right, sir? So my very first question to you, sir, is like आपने फौज का career चुना just after your school and your college, you opted for defense. So what was the reason behind that? Like आपने सिर्फ Yeah. आर्मी को ही और Yes. डिफेंस को ही क्यों चुना? So, hello. Yeah, Ankush. So, yes, it's a question asked by so many people. Matlab, even while serving. Na? Now, Ankush, I'll tell you my reason behind it. Uh, my Bua's husband, my uncle, he was part of the 71 war, and he used to tell me the stories of the war, 71 war, when I was very young. I mean, I was just a kid, and that inspired me a lot कि यार अगर बड़ा होके कुछ बनना है तो फौजी बनना है. So वो बचपन से it's a childhood dream. It was very clear कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बस फौजी बनना है. And so after that, college में I joined NCC. NCC has played a very, very important role, to keep me motivated throughout my college journey, because सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट कॉलेज में आने के बाद होता ही है ना, यूनिवर्सिटीज लाइफ वगैरह में, कि यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. तो एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं, वो किसी परेड पार्ट ऑफ एयरविंग एनसीसी. सो ये सारा जो एनवायरनमेंट था, इससे और भी वो क्लैरिटी आती गई कि क्या करना है, क्यों करना है. मतलब फौज में जाना था वो ठीक था, बट फिर व्हाट आर द एंट्रीज, क्या होती है, एंड व्हाट इज एनडीए, आईएमए, ओटीए, व्हाट इज लेफ्टिनेंट साहब, व्हाट इज आर्म्स लाइक इन्फेंट्री क्या होती है, एंड ऑल. सो सारी क्लैरिटी एनसीसी से आ गई. एंड देन उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन तो एनडीए के लिए मैंने एक बार ट्राई किया था, बट आई कुड नॉट क्लियर द पेपर, बिकॉज हम लोग, आई वाज फ्रॉम सोलापुर, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू पुणे, एंड वहाँ पे सो इतना अवेयरनेस था नहीं व्हेन आई वाज इन स्कूल. 11 के बाद एक बार जस्ट ट्राई किया था, बट बिफोर आई कम टू नो व्हाट इज एनडीए, मेरा एग्जाम खत्म हो चुका था. ओके. सो उसके बाद तो एज भी निकल गया था, एंड सो उसके बाद फिर देन आई वेंट टू पुणे के बाद एनसीसी, एंड देन after seventh SSB attempt, so I got through. Okay. It was my last final attempt, and I joined OTA. So, Okay, that's great. yeah. So this is the journey. So Okay. I Fine. had almost attended all the SSB centers. That's not an achievement, but it's quite a interesting journey. So I don't want anyone else to go through this journey. That's why I'm coming live. I wanted to interact you and all other channels which are doing such a great job, because when I was in college, हमारे टाइम पे इतना वो कनेक्टिविटी नहीं था. जब भी कुछ डाउट्स आता था तो किसको पूछे, मतलब कोई अगर ऑफिसर मिल जाता था तो बहुत अच्छा लगता था, बट नॉट इन दिस फ्रीक्वेंसी. So Right, sir. you But guys are these really, days, like all of us are connected with the social media, and yeah, we have lot many yeah, options. So aspirants are doing great, great. right, Yes, sir? So nice to hear that, sir. You cleared SSB in the final attempt, and
you prepared it in a sequence way. That's great, sir. So, sir, like अभी जितने भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी को एसएसबी के बारे में पता है. ऑल ऑफ अस नो करेक्ट like what is the procedure और कौन से दिन क्या होता है. We have PPDT, we have TAT, we have psych, we have interview. So इन चीजों के बारे में like डिस्कस करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा. What exactly we need to discuss is like what is the demand of SSB. Like अगर हम parameters देखें तो those are officer like qualities. करेक्ट Right sir? करेक्ट एग्जैक्ट सो हाँ ये सर. सो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो वहाँ पे चेक करी जाती हैं कैंडिडेट्स के अंदर, तो वो किस हिसाब से चेक करी जाती हैं और क्या जो एसेसर्स हैं वो डिमांड रखते हैं वहाँ पे. Okay, good question. Yes, sir. And Ankush Yes. will not waste time on process because obviously process is available everywhere. Even अगर कोई किसी ने ज्वाइन किया है जिसको प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, they can Google सर्च, वो सब मिल जाएगा. Yes. Now the demands. So officer like qualities, there are 15 qualities. वो भी आपको Yes. सब मिल जाएंगे गूगल पे. There are 15 qualities. उस 15 qualities में से भी there are 5 qualities which are very very important than other qualities, other 10 qualities. So for Yes, example, determination, courage, effective intelligence, logical reasoning, initiative, okay, sense Yes. of responsibility. ये क्वालिटीज ऐसी है, कॉपरेशन, ये क्वालिटीज पे दे कैनॉट कॉम्प्रोमाइज. सो नाउ Right. how these 15 qualities are being assessed, actually they are not checked, it's been assessed. Assess means what? There is a procedure. उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि कुछ टेस्ट उन्होंने फॉर्म किए हैं वहां पे, जो टेस्ट आपको पता चल जाता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इंटरव्यू है, एंड दी ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर के जो ग्रुप टास्क होते हैं. सो वो 9 टास्क होते हैं, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है, एंड साइकोलॉजी भी होती है. ये तीनों अलग अलग डिफरेंट जरिया है एक ही कैंडिडेट को वो 15 सेम क्वालिटीज को असेस करने के लिए. तीनों अपना अलग अलग असेसमेंट करते हैं हर पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर. इवन इन स्क्रीनिंग ऑल्सो फर्स्ट स्टेज में भी. तो वो यही देखते हैं फर्स्ट स्टेज में कि या इस कैंडिडेट में ये 15 में से जो भी क्वालिटीज है, एटलीस्ट ये जो 5 क्वालिटीज में से भी कोई जो क्वालिटीज हैं, कुछ फ्यू क्वालिटीज आर देयर और नॉट. शुड वी स्क्रीन हिम फॉर द नेक्स्ट स्टेज और नॉट? एंड बिलीव मी, स्क्रीनिंग के लिए अगर एक भी असेसर ने रेकमेंड कर दिया कि यस रेकमेंड, तो वो स्क्रीनिंग हो जाता है बंदा. ओके, यस सर. तो मैं फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजिस्ट ने सेड यस रेकमेंडेड और आईओ और जीटीओ ने अगर नहीं किया होगा तो भी उसको नेक्स्ट स्टेज में लिया जाता है. सो जस्ट इमेजिन, अगर जो स्क्रीन आउट होते हैं, इसका मतलब तीनों में से तीनों किसी भी असेसर्स ने आपको रेकमेंड नहीं किया है. ओके, नहीं किया. या सो स्क्रीन आउट होने का एक मेजर रीजन वही होता है. उसमें स्क्रीनिंग में 2 ही मेजर टेस्ट होते हैं. लेट्स गो बाय स्टेज. सो फर्स्ट स्टेज इज स्क्रीनिंग ओनली, जिसमें मैक्सिमम लोगों को निकाला जाता है स्क्रीनिंग जब वहां से स्क्रीन आउट होते हैं. तो उसमें 2 ही टेस्ट होते हैं. एक तो OIR होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, एंड दूसरा होता है आपकी PPDT. दैट इज आल्सो परसेप्शन टेस्ट. सो मोटे तौर पे सारे एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, SSB इज ऑल अबाउट द परसेप्शन टेस्ट. इट्स अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इज काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, या इसको आप पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल सकते हो. ओके, यस. बट अगर इसको क्लियरली बोला जाए, क्लियर वर्डों में, तो परसेप्शन मतलब आपका परसेप्शन क्या है आपके लाइफ के बारे में. तो आपकी साइकोलॉजी के थ्रू, जीटीओ के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, सेम क्वेश्चंस. जस्ट इमेजिन ना, सेम पिक्चर जब 100 कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है, उसमें से सिर्फ 20-30 को ही स्क्रीनिंग क्यों किया जाता है, और उसमें से भी सिर्फ 2-3 को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनका जो परसेप्शन है वो बाकियों से अलग था, जेन्युइन था, सबसे इम्पोर्टेंट. ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एकमात्र टेस्ट है जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप इसमें कभी भी कोई कॉपी नहीं कर सकते. Nobody can copy someone else story, या जो आप पढ़ के आए हो कहीं पे भी, एंड उसी को आपने स्टोरीज में उसको लिख लिया आपने. सो वो इमीडिएटली पता चल जाता है, बिकॉज टेस्ट आर डिजाइन इन सच अ वे. काफी सारा टाइम प्रेशर रहता है. इफ यू सी दिस, 30 सेकेंड्स में पिक्चर निकल जाएगा, 4 मिनट होती है आपको सॉल्व करने के लिए. सो let's make it very clear, SSB is all about your perception. आप कैसे परसीव करते हो
वो जो सारे टेस्ट है उसमें भी, और अपने पूरी लाइफ को आपने कैसे परसीव किया है। ओके, एक Right. स्मॉल एग्जांपल देता हूं मैं कि ये स्टोरीज काफी सुनी भी होगी आप लोगों ने, बट दोबारा आई वांटेड टू शेयर कि जब एक मेजर साहब एंड उनकी कंपनी एक आइसोलेटेड पोस्ट पे है और चाइनीज आर्मी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, तो जो Yes, sir. सुबेदार मेजर साहब आके कहते हैं कि सॉरी सीनियर जीसीओ साहब आके कहते हैं कंपनी के कि साहब दुश्मन ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। तो फिर मेजर साहब कहते हैं कि ओह दैट्स फाइन, तो हम तो किसी भी डायरेक्शन से लड़ सकते हैं। दैट्स द Right. रिएक्शन। ओके, सो दिस इज द परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। ये होता है लीडर, मिलिट्री लीडर। ठीक है, मतलब कोई होगा तो वो डर जाएगा, कोई होगा तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, अभी कैसे करे, अभी क्या करे, अभी कहाँ जाए, कभी क्या नहीं। इट जस्ट योर रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। ठीक है, Right, sir. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उसको बोलते हैं। ओके, जी. तो स्क्रीनिंग के लिए सबसे जो पीपीडीटी टेस्ट होता है उसमें से मैक्सिमम लोगों को बाहर निकाला जाता है, बिकॉज लगभग ओएआर में पीपल आर स्क्रीन इन, मतलब जितना भी कोई प्रैक्टिस करके जाता है, और वही एक टेस्ट है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि Right. लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की किताबें वगैरह मिल सकती है आपको। वो जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह का जो टेस्ट होता है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज द ओनली टेस्ट जिसका आप प्रैक्टिस Only. करके जा सकते Yes. हो। या रही बात अभी पीपीडीटी की, तो पीपीडीटी में क्या होता है, जो आपको बताया जाता है कि आपको स्टोरी लिखनी है, कंप्लीट करनी है 4 मिनट में, एंड हमको जी. कंप्लीशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है रादर देन हम उसमें कंटेंट क्या लिख रहे हैं। बट असेसर ये हमेशा बोलता है कि इफ यू डोंट कंप्लीट द स्टोरी वी विल गिव यू 1 मिनट टाइम ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, जो सेकंड पार्ट होता है Correct. पीपीटी का। सो जी. यू कैन कंप्लीट द स्टोरी, यू कैन कंक्लूड द स्टोरी ड्यूरिंग योर नरेशन, और आप नरेट Narration. कर सकते हो और पूरे लोग को बता सकते हो। वो जो 1 मिनट होता है, दिस इज जी. द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर स्क्रीनिंग टेस्ट, बिकॉज वही 1 मिनट होता है जिसमें आपको तीनों के तीनों ऑफिसर्स असेसर्स देख रहे हैं, जीटीओ सामने बैठा है, आयु सामने बैठा है, और साइकोलॉजिस्ट भी सामने बैठा है, एंड ही इज वॉचिंग यू कंप्लीटली। पूरा फोकस उनका उसी पे रहता है। आप किस तरह से खड़े होकर बात करते हो, कैसे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी। इसमें ये नहीं जरूरी कि आपका ग्रामर कितना अच्छा है, कितने अच्छे हाई फाई वोकेबलरी अंग्रेजी बोल रहे हो, क्वालिटीज को देखा जाता है। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ऑल्सो। ओके, क्योंकि नॉलेज का ऑलरेडी आपका लिया है, सीडीएस आपने क्लियर की है या एनडीए क्लियर की है, तो जनरल Yes. नॉलेज का पेपर आप क्लियर करके गए हो। सो दे विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन कि आपका नॉलेज कितना है देखने के लिए। कि मतलब अगर पिक्चर था कि कोई एक नदी थी, उसमें एक बच्चा डूब रहा था, आसपास लोग जी. थे, है ना, या फिर एक ब्रिज था वहां पे एंड कुछ लोग ऊपर खड़े थे, बच्चा नीचे डूब रहा था, तो हर कोई लिखता है कि वो जो भी मेन सेंटर कैरेक्टर होगा उसने रस्सी डाली, उसको खींच लिया। कोई बोलेगा उसने लाइफ गार्ड को बुला लिया, कोई बोलेगा उसने पुलिस को बुला लिया, मेडिकल को बुला लिया। फिर कोई होता है बोलता है कि he jump into the water and save the boy। तो सिंपल क्लियर है ये करेज, Yes, sir. मतलब क्लियरली दिखता है, एक्शन से दिखता है। सो ये होना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए आपके, मतलब आप जब जो भी लिख रहे हो स्टोरीज में, तो इनिशिएटिव भी है। ठीक है, सो these are the क्वालिटीज। अगर उसने इतना बोल दिया ना कि जंप इनटू द वाटर एंड सेव द गाय, उसके बाद लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज होगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ही विल गिव अ सीपीआर एंड ये वो बहुत सारी हाई फाई चीजें लिख के कोई सिलेक्ट नहीं होगा वहां पे। अभी Right, sir. कोई होगा कि सोल्जर्स है, कुछ कोई ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं, रात का समय दिख जाता है वहां पे, तो देन जी. ही स्टेप फॉरवर्ड, ही मूव फॉरवर्ड एंड लीड द टीम एंड मूव Right. इनटू द एनिमी टेरिटरी। ठीक है, सो ये जो वर्ड्स Yes. होते हैं ना कि ही स्टेप फॉरवर्ड एंड लीड द Step टीम, forward. तो ये इनिशिएटिव हो गया, ये लीडरशिप हो गया आपकी, ये करेज हो गया आपका, है Exactly. ना। सो Right, sir. कोई कंपटीशन के लिए जा रहे थे, सो ही केप्ट ऑन गिविंग द अटेम्प्ट्स हाउ टू अचीव दैट लेवल एंड फाइनली ही वॉन। ही फेल्ड बट ही अगेन गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड, ही फेल्ड बट ही अगेन गेट अप, मूव फॉरवर्ड, डिटर्मिनेशन। तो ये आपके बोलने से पता चल जाता है कि बंदा डिटरमाइंड है करके। आप ये Yes. लिखोगे कि रमेश इज वेरी ब्रेव, रमेश इज वेरी करेजियस, रमेश इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंस, वो नहीं मानेंगे। आपके बोलने से नहीं होता, Yes. आपके एक्शन से होता है वो। ठीक है,
दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, मतलब अगर वो दिन बोल रहा है रात बोल रहा है, वहां पे क्लियरली कभी कभी होता है विंडोज में हल्का सा एक सूरज का ड्राइंग होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, ये जो पिक्चर होता है ना वो फोटोज नहीं होते, वो ड्राइंग होते हैं. इफ यू ऑब्जर्व इट्स अ ड्राइंग, है ना. यस. तो इसलिए लोग बोलते हैं कि पिक्चर बड़ा ब्लर था. ब्लर नहीं था वो. इट्स नॉट ब्लर. अगर आप कैमरा से कोई फोटोज निकालते हो वो ब्लर होता है, वो पिक्चर आपको नहीं दिखाते उसमें. हेलो. तो आपके एसएसडी में जो है वो आपको ड्राइंग्स होते हैं. ड्राइंग्स जानबूझ के होते हैं बिकॉज यू ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली. The same thing Assessor said. Gentlemen, please observe the picture carefully. You'll be given 30 seconds to observe the picture carefully, understand how many characters you can see, their moods, their age, and their gender, है ना. And so write the story. So जैसे introduction होना चाहिए, main body, and then conclude the story. 3 parts. Okay. Somebody seriously किसी ने observe किया होगा ना, तो उसको पता चलेगा कि खिड़की में से हल्का सा एक सूरज था. इट मींस इट्स अ डे टाइम. तो अगर कोई लिखता है कि रात के समय उन्होंने ऑपरेशंस किया था, इट मींस दैट कि ही इज नॉट ऑब्जर्व द पिक्चर. प्रोबेबली ही कैन से कि रात को वो मूव करके गए थे, लेकिन मॉर्निंग जैसे हो गया उन्होंने ऑपरेशंस लॉन्च कर दिया. यस, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय. वो दिख रहा है सामने, है ना. तो कभी कभी होता है कि ये दिखाया जाता है कि वहां पे कोई कब्रिस्तान है. ओके. और वहां पे क्रॉस लगा हुआ है एंड एक सामने बंदा खड़ा हुआ है. एंड so Captain Ramesh is this and that and he lost his life, and his younger brother Suresh is motivated to join army. Now this is all fine. बहुत अच्छा स्टोरी लिखा होगा, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि अगर वो वहां पे कब्रिस्तान में किसी इसके सामने खड़ा है, मौत के सामने, तो क्रॉस लगा हुआ है, तो his name shouldn't be Suresh. Okay. Yes. His name should be, he's a Catholic, he's a Christian, his name should be John Michael, है ना. उसका छोटा भाई का नाम भी वही रहेगा. He cannot be a Suresh and रमेश का वहाँ पे क्रॉस लगा के हुए वहाँ पे बॉडी सुनी होती होंगी ना कब्रिस्तान में. So these are the things which they see कि वो बंदे ने कितना पिक्चर को ऑब्जर्व किया है क्लियरली. ओके. Right. So that's why observation is very important thing. And ये observation क्यों होना चाहिए? Because आप जब आपकी डिफेंस फोर्सेस का डिमांड यही है कि सिचुएशन जब आपके सामने आती है, you are expected to take quick but the right decisions. And ये आदत आपको तभी लग सकती है जब आपका observation is at super level. Why your leader? What is the difference between a leader? That you can see things which the other people can't able to see that thing. Okay, you can anticipate the threat immediately more than any other your teammates. That's why you are called leader. That's why you are a leader. इसलिए आपको वो 2 तारे दिए जाते हैं. ठीक है, या आपको जो मतलब जो हायर रैंक्स आपको दिया जाता है आपको लीड करने के लिए, 120 की टीम या 600 की टीम या पूरी फौज, पूरी 12 लाख की टीम. बिकॉज आप लोग वो चीज देख रहे हो जो बाकी किसी आपके साथी नहीं देख पा रहे, इसलिए आपको वहां पे रखा हुआ है. So this is the generally they are looking after the qualities only. So make it very clear, this is a test of your perception. We are looking your qualities. Now don't worry about कि मैं qualities के ऊपर focus कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. आप just focus on your perception and your observation. It should be very genuine. It should be natural and it should have some substance, है ना. नॉर्मल स्टोरी लिख दिया आपने तो वो भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको, कोई क्वालिटीज है ही नहीं तो. ठीक है. एग्जैक्टली सर, वेरी राइट. सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ. अभी मैंने भी एसएसबी दिया था, तो वहां पे जो पहले दिन पिक्चर आई थी, 3 सोल्जर्स वर देयर, और वो सोल्जर्स अपनी गन पोजीशन, 2 सोल्जर अपनी गन पोजीशन पे लेके वो एक पहाड़ी एरिया पे अपनी जस्ट वो देख रहे हैं, और एक सोल्जर पीछे खड़ा हुआ था. राइट सर. सो ये मेरी पिक्चर थी वहां पे, और वी वर इन द एसएससी टेक एंट्री एंड वी रिपोर्टेड 205 कैंडिडेट्स वर देयर ऑन द वेरी फर्स्ट डे.
और अब वहां पे जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे हम सभी ने बहुत ध्यान से सुने। और जो स्टोरीज बना रहे थे सारे कैंडिडेट्स, उनकी स्टोरीज कुछ की सही भी थी, कुछ की मतलब मेरे को ऐसी लगी, बट मैंने जो बनाई थी सर मैं वो बताता हूँ अभी, जिससे क्या है जितने बच्चे जुड़े हुए उनको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली। तो सर मैंने ऐसे बनाई थी कि एक लाइक देयर वाज अ लेफ्टिनेंट रोहन हु वाज रिसेंटली पोस्टेड इन कश्मीर एरिया, and he observed the movement of some terrorist, and with the help of observer he tracked their movements, and with the calculation of distance he neutralized the terrorist. मतलब Okay. मेरी बस, हाँ सर, एक लाइन यही थी कि वो ऑब्जर्वर की हेल्प से उनकी मूवमेंट को ट्रैक करता है और वो वहीं पर उन टेररिस्ट को खत्म कर देता है. Okay. The main actions were these, and then he informed his higher authorities and finish off the ऑपरेशन. मतलब ये था मेन क्रक्स जो मैंने बताया अपने एक्शंस में, इतना था बस. उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, वहां पे फिश मार्केट हुआ, सब मतलब चिल्ला रहे थे एंड आई वाज साइलेंट. Okay. एट लास्ट जैसे ही उनका पिच डाउन हुआ मैंने एक पॉइंट दिया बस कॉमन स्टोरी में, एंड दैट्स इट सर. और उसके बाद लाइक आई वाज जस्ट स्लीपिंग जब रिजल्ट सुना रहे थे. मतलब मैं ऐसे नहीं था कि मुझे स्क्रीन इन होना है, मुझे सेलेक्ट होना है. आई वाज जस्ट स्लीपिंग एंड आई वाज लाइक वेटिंग फॉर माय ट्रेन. मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, राइट सर. एंड तो धीरे धीरे करके इस तरीके से हमने परफॉर्म किया था. तो मतलब मेन बात यही थी जैसा आपने भी सर बताई कि आपको अपनी स्टोरी सबकी तरह नहीं रखनी है. आपको अपनी स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होने चाहिए जिससे कि उनको भी लगे लेट यस दिस इज द कैंडिडेट हु इज द राइट. यस, Very true. Very true. Yes. तो Because इस तरीके से है. या क्योंकि वो आपकी सोच ही है ना, आपका परसेप्शन. मतलब आपने मूवी, अपनी जो पिक्चर देखा है, जो ड्राइंग देखी है, तो आप जो सोच रहे हो अगर वैसे ही सारे के सारे ही सोच रहे हैं तो लीडर कब उसमें आएगा बाहर? लीडर तो वही होगा ना कि जो कुछ थोड़ा सा आगे जाके सोचे, थोड़ा उस बॉक्स जो बना हुआ था, बॉक्स के अंदर बहुत सारे हमारा जो एक लिमिटेड परसेप्शन होता है उसको तोड़ के बाहर जाके उसने सोचा, है ना. यस, तो यस, करेक्ट. इस तरीके से. और बाकी सर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. लाइक आपने भी वी जस्ट डिस्कस्ड फ्यू डेज बैक कैसे वहां पे जो जीटी ऑफिसर हैं टेस्ट करते हैं अबाउट हाइट. फेयर होता है किसी को, लाइक व्हाइल डूइंग द कमांडो वॉक सम ऑफ द कैंडिडेट्स टू शिवर देयर लेग्स. तो वहां पे पता लग जाता है, राइट. यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग. आपकी साइक वॉट एवर यू आर राइटिंग डाउन, सो ईच एंड एवरी वर्ड मैटर्स देयर, राइट सर. Correct. But I just want to add one point. See, डर सबको लगता है. So that doesn't mean कि they will straight away reject you कि आपको हाइट का डर है वगैरह. No, हाइट का डर है ये तो सबको होता है. वो जीटीओ को भी खड़ा कर दिया होंगे तुम वहां पे, तो उसको भी थोड़ा सा डर लगेगा हाइट पे आने के बाद. ठीक है. That is very natural. That's a human behavior. Right, he will not reject you because you have a height phobia. He will reject you because you never attempted it. बहुत लोग होते हैं जो उसको स्किप कर देते हैं, ऊपर जाके नीचे उतर जाते हैं, या डर की वजह से वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते. वो कैसे भी जंप कर लेगा और पकड़ लेगा, गिर जाएगा. तो वहां पे क्या होता है, लाइक GTO will tell you before start any task, GTO task, he will explain you the color code, है ना, रेड, ब्लू एंड व्हाइट, है ना. वो बोलता है कि जेंटलमैन, रेड कलर इज आउट ऑफ बाउंड फॉर यू, फॉर एवरीवन. यस, ब्लू कलर इज आउट ऑफ बाउंड फॉर द मटेरियल, जो पल्ली प्लैंक वगैरह जो आपको देते हैं, एंड व्हाइट इज इन बाउंड, वो आप उसको यूज कर सकते हो. तो इफ यू सी, बहुत बार ऐसा होता है ना टाइगर जंप वगैरह में, जो प्लेटफॉर्म होता है उसके नीचे रेड कलर लगा होता है. इफ यू ऑब्जर्व क्लियरली, अगर आपको इफ यू गो देयर यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी दिस थिंग. तो टाइगर जंप में आपको अगर वो जंप कर लिया एंड उसको रोप को पकड़ लिया, तो आप झूलते हो. झूलने के बाद दोबारा आप वो टच करते हो प्लेटफॉर्म को जहां पे वो रेड कलर होता है. तो उस जंप में भी, उस मॉल में भी, कैन यू रिमेम्बर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, या जो रूल्स बताए थे कि भाई रेड कलर इज आउट ऑफ बाउंड. ठीक है. तो इनिशियल के मेरे जो एसएसबी थे उसमें तो मैं मतलब मुझे उतना ध्यान में आता नहीं था, तो मैं टच कर लेता था उसको, हर कोई कर लेता था उसको. ठीक है. एंड फिर नीचे जाके जंप कर लेते थे. बट देन
Right. फाइनली जब मैं लास्ट में हुआ था, आई ऑब्जर्व क्लियरफुल, यस डर तो लगा तब भी जंप करने के बाद, बट देन आई सी इट्स अ रेड कलर, ठीक है, तो उसको टच नहीं करना Right. है, तो पैर चुरा लिया, दोबारा जंप कर लिया. सो लाइक जैसे वहां पे एक बैलेंस होता है, थर्ड ऑब्स्टेकल आई स्टिल रिमेंबर, जिसमें एक Yes. zigzag बैलेंस होता है, zigzag की तरह. तो उस पे ऊपर चढ़ गया, वो बैलेंस नहीं आया, वो गिर गया, लेकिन वो दोबारा उठ के आ रहा है, दोबारा चढ़ रहा है, दोबारा उठ के आ रहा है, दोबारा चढ़ रहा है. सो दैट्स अ डिटर्मिनेशन. Right. सो हाइट फोबिया से वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट यू नेवर अटेम्प्टेड इट. तो डिटर्मिनेशन क्वालिटी कहाँ है? ठीक है, आपको जो कोई टास्क दिया गया है और आपको नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत बार होगा आपको, बिकॉज यू डोंट Yes. नो, नोबडी नोज व्हाट इज देयर. कश्मीर में आप जाओगे, लद्दाख में आप जाओगे, अरुणाचल में जाओगे, फील्ड एरियाज में जाओगे, जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस आएंगी विच यू नेवर फेस्ड. कौन रहता है Right. कश्मीर में? कौन पला पड़ा हुआ है? मतलब वेरी फ्यू पीपल. इवन जो सिटीज में भी जो पले पड़े हैं, उनको भी बॉर्डर पे जाके फाइनली उनको लड़ना है. ठीक है, हथियार होंगे आपके पास, एम्युनिशन होगा आपके पास, आपके जो जवान जैसे उनकी जान आपके हाथ में होगी, और कुछ सिचुएशन ऐसे आ गई, वी डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन. तो आप क्या छोड़ दोगे उसको कि आप बार बार सीनियर्स को कॉल करोगे, सर कैसे करना है बताओ, सर कैसे करना है बताओ? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. Right. यू हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन, यू हैव टू पुट इन एफर्ट. लाइफ में कभी कभी होता है कि नहीं हो पाया, कोई क्लियर नहीं कर पाया, मैं एक एसएसबी जी. चला गया, आउट हो गया, चलो ठीक है, नहीं हो रहा मेरे से, कोई नेक्स्ट. एमबीए की एग्जाम दे दी, नहीं क्लियर पाया, कोई चलो नेक्स्ट. फिर कहीं मेडिकल में गया, कभी इंजीनियर में गया, कभी वो किया वो किया. तो ऐसा नहीं चलेगा फौज में. यू जस्ट कांट स्विफ्ट कि मैं आपको फॉरवर्ड पोस्ट पे रखा है और आपसे कोई ये काम नहीं हो पा रहा है, आप बोलोगे चलो सर नहीं हो रहा, मैं वापस आ रहा हूँ हेडक्वार्टर में. Right. ओके, या Yes, sir. सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ. हम लोग जानना चाहेंगे, आपने एनएसजी में भी सर्व किया है, यस तो यस. थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका एनएसजी का भी प्लीज. Yeah, sure. So energy was a fantastic, wonderful experience. It was my dream. And मैं बचपन में ही देखता था जब ब्लैक कट कमांडोज का वो रिपब्लिक डे पे. आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन स्कूल, एक बार उनका मार्चिंग परेड देखा था. सो दैट टाइम आई थॉट कि इट्स वेरी इम्पॉसिबल, मैं कहाँ वहां तक पहुंच पाऊंगा. इनफैक्ट मैं जब एनसीसी में भी जब आया था तब भी एक्सक्यूज मी, जो राजपथ था वो भी एक ड्रीम था. सो आई अचीव दिस इन 2006. ब्लैक कैट कमांडोज का आई वाज ऑलवेज हैविंग दिस willingness to serve into the special forces. मैंने पैरा को भी आउट किया था ड्यूरिंग दी academy days. बट हमारा ही एक इकलौता ऐसा कोर्स था जिसमें मैक्सिमम पैरा ऑफिसर्स जो कैजुअलिटीज हो गए थे अदर आर्म्स में, लाइक इन्फेंट्री, आर्टिलरीज वगैरह, मैक्सिमम आर्टिलरीज वगैरह. आई वाज वन ऑफ देम. बट अगेन आई वाज हैप्पी, इट वाज अ फैंटास्टिक यूनिट, वो फोर्स यूनिट. बट स्टिल मुझे वो बोलते हैं ना कि अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि आर्टिलरी का वैसे काम तो स्पेशल होता नहीं. बट यस, आई वाज इन कश्मीर, तो हमने काफी वहाँ पे भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन और ऑब्स्टेकल सिस्टम में ही था मैं, तो काफी ऑपरेशंस वहाँ पे हुए. बट स्टिल वो एक जुनून था कि यार समथिंग कटिंग द एज कुछ करना है. एंड मतलब ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी वो बलिदान बैच चाहिए ही चाहिए. मेरा उस वक्त आई वाज नॉट वेल, माय शोल्डर गॉट इंजर्ड. मेरी शोल्डर की एक्चुअली सर्जरी हो गई थी. Okay. मुझे मेडिकल कैटेगरी में डाला गया था. बट तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बनना है. इट वाज वेरी स्टूपिड थिंग कि मेरे सीईओ ने कहा था कि तू हाउ कैन यू डू इट, यू कांट डू इट, यू शुड नॉट गो. और सर अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली आई हैव टू गो, बिकॉज आई वुड लव टू डिसअपॉइंट all my seniors. Okay. So probation was tough, of course. मेरे लिए काफी tough था because I was just recovered from the shoulder injury, and NSG is more about your upper body strength. उसमें काफी सारे रोप चढ़ने होते हैं आपको, and chin ups, pull ups वगैरह के काफी सारे टेस्ट होते हैं, because building intervention करना है काफी सारा वेट लेके. So endurance से ज्यादा आपके upper body strength पे फोकस होता है उनका. The obstacle that NSG probation had, 26 obstacles course जो होता है, it is one of the toughest obstacle course. So उसकी अगर आप height वगैरह भी जो like you said, तो height phobia तो NSG कमांडो को होना ही नहीं चाहिए. मतलब
We used to do slithering at the height of 163 meters. मतलब मुंबई की सबसे tallest एक बिल्डिंग है RBI, उसके छत के ऊपर भी हमने हेक्टर से स्लेदर डाउन किया है. नो सेफ्टी नथिंग, कुछ नहीं. वो 35 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके भी छत के ऊपर और भी 2-3 फ्लोर, मतलब इफ यू सी द हाइट. सो इस प्रोबेशन वाज अगेन वेरी वेरी, मतलब वो 3 महीने जो थे, एक एक दिन आई रिमेम्बर. एंड इनिशियल जो बीपीटी होती थी, आई वाज कंप्लीटली लास्ट. पीछे एक एम्बुलेंस चलती है कि कोई चक्कर आके गिर गया है, किसी ने छोड़ दिया तो एम्बुलेंस में बैठे, तो मैं एम्बुलेंस के साथ आता था. पहली जो बीपीटी हुई थी, तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स थे, सारे खुर्राट में, सारे चुने हुए होते हैं एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में, जो पैरा एसएफ से या एक्स एनएसजी से ही होते हैं, दूसरा तीसरा टेनियर, या कुछ कुछ इन्फेंट्री बटालियंस के भी होते हैं. एंड दे आर वेरी, मतलब जल्लाद बोल दोगे ना, वैसे ही होते हैं. दे हैव नो हार्ट्स. Yes, sir. So and once you join the probation, तो वहाँ पे there is no officer and JCO and जवान, वो किसी को रैंक नहीं देखते, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बट everyone is same. फर्स्ट बीपीटी में मैं एम्बुलेंस के साथ आया था, एंड मुझे बहुत उस्ताद ने बोला था कि साहब ये एनएसजी है, यहाँ पे तो एम्बुलेंस भी एक्सीलेंट में आती है. सो देयर आर एनक्लोजर्स, यू नो, एक्सीलेंट, गुड एंड सैटिस्फैक्टरी. तो यहाँ पे तो एम्बुलेंस भी एक्सीलेंट में आती है, आप कहाँ इतने पीछे रह गए. बट देन लेटर जो आपका विल पावर होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है. अगर आपके पास कुछ नहीं है और विल पावर है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग. आई एम द एग्जांपल. ओके, आई वाज नॉट फिजिकली स्टर्ड. मैं इतना कुछ सुपर ह्यूमन या ऐसे पावर के साथ नहीं था. इवन इन द एकेडमी आल्सो आई वाज वेरी एवरेज कैडेट. बट जो विल पावर थी वो हमेशा सुपर नेचुरल थी, वो हमेशा अलग थी. So, मेरे टीम में बहुत सारे पैराज एंड इन्फेंट्रीज के सोल्जर्स, जवान्स, ऑफिसर्स थे. देयर आर ऑफिसर्स फ्रॉम पैराज आल्सो, 5 पैरा मेरे पोस्टमेट्स वगैरह भी थे. तो दे यूज्ड टू डू इट वेरी इजीली. उनका प्रोविजन भी रहता है और उनका हर साल में टेस्ट रहता है, सो उनके लिए केक वॉक था. बट आई वाज हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड अगेन द शोल्डर वाज नॉट कंप्लीटली रिकवर्ड, बट वो करना था. ड्यूरिंग द प्रोबेशन आई रियलाइज वन मोर थिंग, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. ये हमेशा I wanted to share these things with all the aspirants कि हमेशा have the gratitude feeling in your heart. This is something very spiritual power behind it. मतलब अगर आप जैसे बोलोगे ना कि जनरली जब आप, मेरी जो रेस शुरू हो जाती थी ऑब्स्टेकल्स की, तो एक दिन जस्ट ऐसे सडनली आई जस्ट स्ट्रक कि आई शुड बी नर्वस कि यार मुझे इतने टाइमिंग में ये सारे ऑब्स्टेकल कंप्लीट करने हैं, मैं कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा हूँ, टाइमिंग भी क्लोज करना है. बिकॉज इनिशियल मेरा कुछ, मैंने 30-32 मिनट्स लगाए थे, उसमें से 3-4 ऑब्स्टेकल में फेल हो गया था. आई कुड नॉट एबल टू कंप्लीट द ऑब्स्टेकल. इफ यू कुड नॉट कंप्लीट इवन अ सिंगल ऑब्स्टेकल, यू आर फेल्ड. द एंटायर टेस्ट इज फेल्ड एंड द बीओसी टेस्ट इज फेल्ड, यू आर थ्रोन आउट. एंड ये प्रैक्टिस फर्स्ट उन्होंने लिया था. एंड टाइमिंग मेरे हिसाब से, मेरे जो एज क्राइटेरिया अगर था, तो उसमें तो 18 मिनट्स का कुछ था, एंड 32 मिनट्स, आई मीन ऑलमोस्ट डबल किया था. सो धीरे जब एक्स्ट्रा सेशन होता था, आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट. मैं खुद जब पीटी शुरू हो जाती तो आधे घंटे पहले जाता था. एंड लेट मी टेल यू यार अंकुश, मतलब प्रोबेशन में नींद बिल्कुल नहीं होती. आपको हार्डली 2-3 घंटे मिल जाते हैं. उसमें अगर आप खुद जाके आधा घंटा पहले जाके पीटी ग्राउंड पे अगर खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट टेक्स लॉट ऑफ कमिटमेंट. बट वो मेरा विल पावर था कि अगर, क्योंकि मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बाकी मेरे जितने भी साथी हैं वहां से, उनके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, या जो भी स्टैंडर्ड एनर्जी चाहते हैं उसको मीट करने के लिए, आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. सो आई हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट. एंड वो जब फाइनल टेस्ट हो रहा था, आई वाज जस्ट सिटिंग एट द स्टार्ट लाइन. आई वाज शुरू में लगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं. बट देन आई रियलाइज कि आई शुड बी वेरी लकी, आई शुड बी वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त थे, जिनको, मेरे कोचमेट्स भी थे, जिनको एनर्जी में आना था, उनको ये चांस नहीं मिला. मुझे मिला है. आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ दिस ऑब्स्टेकल कोर्स. एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर में हूँ मैं, यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं. बहुत से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर हु कुड नॉट इवन जॉइन द फोर्स.
मैं तो ऑलरेडी ऑफिसर राइट सर। बन गया हूँ, तो मैं कितना लकी हूँ, एंड आई शुड बी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू द गॉड, टू माय पेरेंट्स, टू एवरीवन कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ. So this was the feeling in my heart at the start point. जो वो वेट लेके, वो राइफल लेके मैं खड़ा हुआ था, टेस्ट शुरू होने वाला था. I was just paying gratitude to all everything. Thank you for giving me this opportunity. And then I start, and then I completed in 14 minutes. Okay. लवली सर, लवली. So yeah. So मेरे जितने भी टीम मेंबर्स थे जिनको लगता था कि साहब के साथ नहीं हो पाएगा, I mean, बहुत ही मुश्किल से चल रहा है साहब का, एंड दे वर सो हैप्पी. मतलब बहुत लोगों ने आके तो गले लगा के मतलब जस्ट हग मी एंड कि साहब आपने तो कर दिखाया साहब, ग्रेट साहब, योर इंस्पिरेशन. So that was a journey of energy progression. And उसके बाद after that I joined, तो then फिर तो मैं छूट ही गया था. I won the best commando team competition within 6 months. I joined in Mumbai 26 Special Composite Group. Again, I was inspired by Major Sandeep Unnikrishnan and his sacrifice. And वो बोलते हैं ना कि भगवान ने वो साजिश कर दी कि मुझे उन्हीं के यूनिट में लाके छोड़ा, बिकॉज आफ्टर दिस 26/11 अटैक द यूनिट वाज रेज्ड इन मुंबई. जो 26/11 का गेट है ना, उसके सामने लिखा है उन्नीकृष्ण द्वार, एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर in just front of the gate of 26 Special Composite Group, which is Sandeep Unnikrishnan Dwar. I won the best commando hit competition, house intervention team competition. It's all India level पे होता है. Yes. जो मेरी जो यूनिट थी 26 SAG या किसी भी बाकी यूनिट जो बाद में रेज हुए हैं, उनमें से किसी ने नहीं जीता था. ये कंपटीशन 51 SAG कंडक्ट करती है, हमेशा 51 SAG ही जीतती आ रही थी. It was a history. It was conducted by them in their own land, मानेसर में, उनके ही ग्राउंड पे होता था. तो एक डोमिनेशन रहता था उनका. बट हमने मुंबई में जाके, उनके घर में जाके उनको मतलब हरा के वो ट्रॉफी जीत के हम जब आए थे, सो यूनिट वाज सेलिब्रेटिंग. मतलब यूनिट में बहुत बड़ा खाना वगैरह रखा था. इट वाज वो तो बहुत ही मतलब हाईएस्ट लेवल पे कंपटीशन था. सो दीस आर द थिंग्स, आई मीन या, सो वो मेमोरी अभी भी है. दैट ट्रॉफी स्टिल केप्ट इन माय यूनिट. सर, लाइक आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, लाइक जगह जगह, एंड यू हैव सर्वड इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिट्स. सो लाइक कोई ऐसा आपका इंसिडेंट जहां पे आपको ऐसा डर लगा हो, 1-to-1 फाइट हो रही हो आमने सामने से, कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं? यस. क्लोज क्वार्टर ऑपरेशंस तो नहीं किए मैंने, बट आई वाज पार्ट ऑफ द एंटी इन्फिल्ट्रेशन. तो उसमें सीज फायर वायलेशंस काफी होते थे पाकिस्तान पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट के बीच में. तो मतलब जो इनिशियल फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो तो दैट वाज ऑसम. मतलब हमेशा वो रहता है कि यार वे, मतलब हर फौजी का रहता है ना कि वो फायर फाइट देखे, वो एक्शन देखे. एंड आई वाज विद द गुरखा बटालियन में ऑब्जर्वेशन पोस्ट में था. लाइक यू सेड इन योर स्टोरी ना, ऑब्जर्वर पोस्ट, आर्टिलरी के ऑब्जर्वेशन पोस्ट रहते हैं वेरी क्लोज टू दी बॉर्डर. वेरी क्लोज मतलब बहुत कुछ क्लोज तो इतना है कि 100-150 मीटर के डिस्टेंस पे है. मतलब आवाज भी अब देखो तो सुनाई देगा पाकिस्तान पोस्ट को. एंड फिर देन सडनली वन डे हमारा मतलब बटालियन का एक पार्टी अंदर गया हुआ था, बिकॉज रात को एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ था, तो उन्होंने काफी फायर खोला था. तो प्रोबेबली कुछ डेड बॉडीज वगैरह थी, ये सस्पेक्ट था. तो पार्टी अंदर घुसी थी जंगल के अंदर उनको बॉडीज को निकालने के लिए. बट वो ऊपर से फिर पोस्ट जो थी उनकी पाकिस्तान की, उन्होंने देख लिया और उन्होंने फायर खोल दिया. सो मेरा जो सीओ था उसने ऑर्डर किया था कि डोंट ओपन एनी फायर, बिकॉज हमारी पार्टी अभी भी अंदर घुसी है उनको निकालने के लिए. सो दे फाउंड सम जूसेस एंड समथिंग मिले थे उनको, कुछ चीजें भी मिली थी उनको, मोटोरोला सेट्स वगैरह मेड इन पाकिस्तान एंड ऑल. बट प्रोबेबली रात को उन्होंने शायद वो बॉडीज अंदर लिए होंगे पोस्ट में से, तो दे कुड नॉट फाइंड एंड दे फॉल बैक. तो उनको कुछ 10 से 15 मिनट लगे वापस पोस्ट पे आने के लिए. हमारी जो पार्टी अंदर गई थी, घातक की टीम थी वो, शायद 10-12 लोग थे.
द मोमेंट वो वापस आ गए, वी वर जस्ट रेडी, वी वर जस्ट सब कुछ कॉक करके एमएमजी ये और मेरी जो मोटर पोजीशंस थी सबको रेडी, ऑर्डर्स वगैरह देके रेडी करके रखा था. They were having a lot of firing on us and we could not fight back because we don't want to escalate, क्योंकि हमारी पार्टी को कुछ ना हो. और जैसे ही वो 10-15 मिनट के बाद अंदर आ गए एंड उसके बाद जो धमाकेदार हमने शुरू किया, my first round on the post and I just still feel that thing ना कि जैसे मेरा फर्स्ट राउंड वो पोस्ट पे गया, उनका भी बहुत सारे राउंड्स मेरे ऊपर आ रहे थे. So that experience was thrilling. I was not scared by that experience, but thrill. And वो क्या होता है, मोटर राउंड का ना आपको आवाज सुनाई देता है, पीछे फिन होता है, ऐसे फिन घूमता है एंड मोटर ऐसे सीधा जाके ऐसे गिरता है, उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी गिरती है. तो जब गिर रहा होता है ना, you can listen कि उसका आवाज आ रहा है एंड देन ब्लास्ट हो रहा है एंड तो हमको पता चल जाता था कि अभी कितना नजदीक फटा है. We could smell the जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, and it was one of the पीर पोस्ट, डोडा पीर करके जो पीर पंजाल है ना, उस पे था. Yes. But the scariest experience मेरा वहाँ पे नहीं था, कुछ और जगह पे था. Yes. Actually क्या था, one day we were going to राजस्थान, हमारा एक कैंप चल रहा था and as I was part of the Bofors unit, हमारे काफी एम्यूनिशंस, बड़े एम्यूनिशंस होते हैं जो गोला बारूद होता है ना, तो उसको लेके हम लोग जा रहे थे ट्रेन में. ट्रेन वाज लोडेड एंड आई गेस एमपी एंड राजस्थान के बॉर्डर में एक छोटा सा स्टेशन आता था. वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग मेरे को जेसीओ का कॉल आया कि साहब ट्रेन में आग लग गई है, देयर इज अ फायर इंसिडेंट एंड द ट्रेन वाज हॉल्टेड लकीली अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि मिलिट्री ट्रेन्स को थोड़ा सा सिग्नल्स वगैरह कम मिलता है. And I was the train adjutant and जो ट्रेन का मेन पूरा सिक्योरिटी था. There are only 2 officers. एक हमारे सीनियर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, and I was a lieutenant sir that time. I was just put in 6-7 years of 6 months 7 months of service. And मुझे मोटरोला पे कॉल आया कि साहब ट्रेन में आग लगी है. एंड मैं जो नीचे उतरा भागा तो देखा मैंने कि हमारे बड़ी ट्रक्स होते थे, तो ट्रक के जो कैबिन होता है उस कैबिन में से धुआं आ रहा था. सॉरी, धुआं तो आ रहा था एंड फ्लेम्स भी आ रहे थे. एंड वो ट्रक कौन सा था जिसमें पूरा हमारा एम्यूनिशन लोड था. एंड वो कितना एम्यूनिशन था, आई टेल यू, वो समथिंग लगभग 150 से 200 शेल्स थे. शेल्स मतलब जो गोला होता है ना, गोला इट्स अ ह्यूज गन. उसका एक शेल का वजन ही 43.6 kg का होता है. काफी भारी. मतलब जो बुलेट होती है ना, जो राइफल की एक बुलेट होती है, उसके सामने वाला जो पार्ट होता है, शेल जिसको बोलते हैं, वो बोफोर्स का 43 kg का होता है. उसके पीछे जो कार्ट्रिज लगता है वो अलग, ठीक है, जिसको वो अलग पूरा बारूद भरा होता है, जिस शेल को वो आगे फेंक देता है, दैट इज डिफरेंट. वो और 100-150 वो कार्ट्रिजेस थे. एंड आई टेल यू, मतलब 43 kg अगर कोई अंडरवेट होगा 50-55 kg का, तो उसके ऑलमोस्ट सेम वेट का एक गोला होता है. ऐसे 150-200 गोलेस थे वहां पे रखे हुए थे, शेल्स वो पैलेट्स में, एंड कार्ट्रिजेस थे वो भी 150-200 ऑलमोस्ट उसके साथ ही. एंड उसके वो ट्रक को, मतलब उसके कैबिन से वो स्मोक आ रहा था. नाउ द टास्क इज टू अवॉइड द मेजर इंसिडेंट. वी हैव टू अनलोड द शेल्स. इट वाज ओपन ट्रक and everybody was watching कि क्या करना है अभी वहां पे. Okay, now I'll tell you the calculation, Ankush. You can just imagine, all aspirants जितने भी देख रहे हैं, एक बोफोर्स के गोले में ऑलमोस्ट 8.8 kg का TNT कंटेंट होता है. TNT यू नो ना, ट्राइनाइट्रा, ये जो होता है, मतलब एक्सप्लोसिव बोलते हैं आप उसको बेसिकली, TNT एक्सप्लोसिव. तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो ग्रेनेड होता है, हैंड ग्रेनेड है ना, हैंड ग्रेनेड आपने देखा होगा, उसका ब्लास्ट वगैरह, उसमें सिर्फ 30 से 32 ग्राम का कुछ TNT होता है. 30 से 32 ग्राम का. एक बोफोर्स के शेल में 8 kg का TNT होता है. मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे, कैलकुलेट करो, सम थाउजेंड्स के ऊपर आपको ग्रेनेड्स मिलेंगे एक शेल के ऊपर. वैसे 150 शेल्स. So, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट, मैंने कैलकुलेट किया था ऐसे ही, तो 35,000 to 36,000 ग्रेनेड्स अगर एक साथ फटेंगे, एक साथ,
तो फिर तो सर तो क्या असर होगा उस स्टेशन को? स्टेशन भी नहीं बचता, हमारा तो कुछ भी नहीं बचता, नथिंग। ठीक है, 35,000 ऑलमोस्ट अप्रोक्स ग्रेनेड्स साइमल्टेनियसली ब्लास्टिंग टुगेदर। सो ये रिस्क था वो। एट दैट टाइम आई एम टेलिंग यू, मेरी फट गई थी यार, सच में, सीरियसली आई वाज सच में। स्केर्ड, आई वाज शिट स्केर्ड कि क्या करना है। बट स्टिल आफ्टर दैट आई हैव टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज अगर वी डिडंट अनलोड द शेल्स तो बहुत बड़ा हादसा होता। सो आई जंप ऑन टू दी ट्रक, वो सारे शेल्स हमने निकाल लिए। और फिर मेरे साथ और भी 2 मेरे जवान आ गए, उनको भी देखा ये सांप चढ़ गए तो हम भी चढ़ेंगे। वो 2 आ गए, हम लोग नीचे फिर एक एक करके फेंक रहे थे उसको। एंड आई टेल यू, और भी सबसे बड़ा जो डर लगा था, जो फटी थी, कि जो जो कैबिन था एंड उसके अंदर एक्चुअली सिलेंडर था, तो सिलेंडर से वो आग निकल रही थी पूरी। एंड जो मैंने लास्ट शेल ऐसे निकाला तो सिलेंडर से आग से वो मेल्ट हो रहा था पूरा, जो लोहा था ना यस कैबिन का, जो ये था। मतलब अगर थोड़ा सा भी देर हो जाती थी तो कुछ मतलब नहीं बचता था। एंड दैट वाज द स्केरियस्ट पार्ट्स ऑफ माय लाइफ, probably the most daring part of my life also। मैं जब वहां पे था तो आई डोंट नो ये कैसे सूझा। अभी जब मैं कभी भी सोचता हूँ इस इंसिडेंट के बारे में, मुझे अभी भी डर लगता है कि मैंने कैसे कर लिया इसको। ठीक है, बट हो जाता है वो उस समय पे। तो this is because of the training also। OT is a fantastic academy। मतलब you are been inculcated this raw courage इसको बोलते हैं। जब ऐसी situations आती है, you have to take charge of the राइट situation। So this was the most scariest part of my life। राइट सर। Yeah। मतलब यही चीज लाइक जैसे भी आपने बताया, यू टुक दैट डिसीजन, आप वहां पे आगे गए, तो आपको देख के फिर आपके साथ जितने भी जवान थे वो भी, उन्होंने भी आपकी हेल्प करी। Yes, correct। सर दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। मतलब Yeah, अगर हम इंटरलिंक करें तो यही चाहिए उन्हें। मतलब आगे exactly। जाके भी सर, लाइक यू हैव टू लीड द ट्रूप्स, यू हैव टू टेक द डिसीजंस विद इन द सेकंड्स। You know, you can lose the lives, you can save the lives. So Yeah, these things matters a lot, sir. correct, correct। Yes, sir. अभी जितने भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगा अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, फील फ्री टू शेयर इन द चैट्स। एंड लाइक अभी सर ने काफी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं और बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को डिस्कस किया है सर ने। एंड मैं भी कुछ बताऊंगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले लोगों को पूछा था कि व्हाट्स योर क्वेश्चंस, तो मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ गए थे। Yes, फर्स्ट, बहुत सारे लोगों का वो रहता है कि सर नर्वसनेस है, डर लग रहा है, एग्जाम आ रहा है, कैसे कुल फट रही है। सो जी, देखो, नर्वसनेस इज बिकॉज यू आर थिंकिंग मोर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या हो जाएगा, एग्जाम के बाद क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। सो आई नो, आई हैव गॉन थ्रू दिस। ये बोलना बहुत अच्छा लगता है, आप बोलोगे कि सर ये बोलना ठीक है, लेकिन होता तो है। इट्स फाइन जी, इफ यू आर हैविंग अ नर्वसनेस, इट्स फाइन। fine. थोड़ी देर सोचो उसको, उसके बाद अगेन गेट बैक टू योर वर्क। अगर रिटन टेस्ट कर रहे हो, मेक अ प्लान, स्टिक टू द प्लान। नहीं हो पा गया कि आज का दिन जो भी डिसाइड किया था उतना कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे शुरू करो दोबारा से, दैट्स फाइन। ठीक है। फिर दूसरा एक क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को आ रहे थे ये रिगार्डिंग दिस मेडिकल के रिगार्डिंग, कि किसी को एपिलेप्सी है, या किसी को आई साइट वीकनेस है, किसी को नॉकनीज है। सो उन सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेडिकल जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट क्लियर द रिटन टेस्ट, यू गो टू एसएसबी, Yes, क्लियर द एसएसबी। आपके उसके बाद आपका एक बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है। आपका 10 दिन yes, का मेडिकल चलता है, और 7-8 दिन कम से कम। yes, sir. 10 days. उसमें एक चीज को आपको देखा जाता है। इफ यू आर क्लियर द मेडिकल, यू आर क्लियर, दैट्स इट। यू डोंट थिंक अबाउट कि मेरे को आई साइट वीकनेस है, कितना चश्मा चलेगा, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ब्लड का, इसका, नॉकनीज का, Right. जस्ट गो देयर। ठीक है। सो लीव इट टू और द मेडिकल बोर्ड। यस सर, अगर कुछ ऐसा रहता भी है, दे गिव यू टीआर, आपको हाँ, एक ये टेम्पररी बिल्कुल रिजेक्शन यार, मिलता या है, दे गिव यू इनफ टाइम फॉर द चेकअप एंड यस गेट यस बैक या। टू द मेडिकल बोर्ड्स। So don't think about that. Just focus on how to clear the written test and then the SSB.
एग्जैक्टली राइट सर। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर माय टारगेट इज टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस बट आई एम कंफ्यूज्ड टू चूज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। दैट्स टोटली अप टू यू विकास, लाइक व्हिच आर्म्स यू आर प्रेफरिंग। आपको कौन सी चीज पसंद है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? ये देखो हर एक का मतलब अपना अपना चॉइस होता है ना। यस सो यू जस्ट सी एयरफोर्स में एडवेंचर है फ्लाइंग का। इफ यू लव फ्लाइंग Yes. यू गो टू द एयरफोर्स। फिर किसी का पैशन होता है समुंदर या नेवी शिप्स, है ना। काफी ज्यादा टेक्निकल Yes. उसमें है, बैकग्राउंड चाहिए होता है, लेकिन आपको यस गो फॉर द नेवी। बट आपको ज्यादा एक्शन लाइफ पसंद है, फाइटिंग पसंद है, आपको स्मॉल आर्म्स हो गया, आपको पहाड़ चढ़ना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है आपको ज्यादा, यू गो फॉर आर्मी। दैट्स व्हाट आई फील। राइट सर। एनी अदर क्वेश्चन? Yes. Can a para-SF guy join NSG? यस And does he have to go through probation for यस NSG? ही हैज टू गो थ्रू प्रोबेशन। सारे Yes. एनर्जी के लिए जो भी आते हैं पैरा से मैक्सिमम आते हैं, 70-80% तो पैरा वाले ही रहते हैं। बट एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू प्रोबेशन, बिकॉज क्या है, पैरा का रोल अलग है, एनर्जी Yes. का रोल अलग है। दिस प्रोबेशन is not only about the probation, not only about the selection, it's a training also. मतलब रूम इंटरवेंशंस, क्लोज क्वार्टर बैटल, हॉस्टेज रेस्क्यू, अर्बन सिनेरियोज में कैसे आपको लड़ना है, ये सिखाया भी जाता है। सो Right. हर पैरास का अपना अपना अलग स्पेशल ये होता है, मतलब जोन होते हैं उनके एरियाज टेरेन वाइज, जैसे 10, 9, 4 जंगल, डेजर्ट, माउंटेन्स। तो उनका ये फोर्टे नहीं रहता कि क्लोज क्वार्टर बैटल, हॉस्टेज रेस्क्यू, अर्बन सिनेरियो में देयर इज अ पार्ट, Yes. कुछ थोड़ा बहुत उसमें 5.5-7% हर एक पैरा कमांडर्स को सिखाया जाता है। बट दे हैव टू गो थ्रू दिस प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। Yes. Best ND Academy. Thakur is asking, so please tell me best ND Academy. बेस्ट एनडीए एकेडमी क्या होता है? एनडीए इज एकेडमी, एनडीए 12th के बाद आप जा सकते हो, आपका ग्रेजुएशन किया जाएगा फोर्स से, एंड देन यू विल बी सेंट टू आईएमए अगेन, देन यू गेट कमीशन। या तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा सकते हो आईएमए में एंड कमीशन हो जाओगे, या तो यू गो टू ओटीए एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री एंड देन यू गेट कमीशन। Yes. मोर अबाउट एनडीए, इट्स अ फैंटास्टिक एकेडमी। आपका ट्राई सर्विस होता है। ओनली थिंग इज दैट कि इमीडिएटली आफ्टर 12th योर लाइफ इज सेटल्ड, यू ज्वाइन योर ड्रीम जॉब। दैट्स द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस है नहीं। और you want to enjoy the college life, then join after college and go to IMA or OTA. Yes. Suman is asking how to OT की preparation कैसे करें? Don't prepare for OTA, prepare for CDS, okay? PTs. Prepare for SSB. So अगर आप मैथ्स पेपर को नहीं अटेम्प्ट करते हो तो आपको OTA का कॉल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या इफ यू क्लियर फॉर मैथ्स and GK and English, so as it is IMA OTA, you can choose which academy you want to go. Okay. Right. Okay. The aspirants who have joined us late, you can watch the recorded session. Yeah. Like we have covered, most of the things in that. Like अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं what about SSB, तो हमने ये सारी चीजें already cover कर ली हैं. So please watch the recorded session. I will share it with. Some of the aspirants are asking Agniveer scheme. Like, what are your opinion about Agniveer scheme? Okay, so now for the aspirants, I'm telling you, Yes, sir. to join the forces, for the aspirants, I'm only talking about the aspirants. या जो जितने भी youngsters हैं, especially, even if you don't want to join the force, just now be very clear. To join any forces, any defense forces, you just need an entry, okay? Entry point. So whether it is Agniveer, whether it is regular, it doesn't matter. Okay. It's a scheme launched recently because there are some upgradation needs to be done in the organization.
The only difference is that, so there are different groups of people. Some are on the side of it, some are against of it. The only thing is, don't think like you're a brigadier साहब or you're a colonel साहब जिसको आप on side में हो या off side में हो. आपको फौज ज्वाइन करनी है, आपको वो नौकरी चाहिए, आपको वो जॉब चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू लव दिस जॉब, पैशन के लिए जा रहे हो, पेंशन के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है. सो पेंशन नहीं मिलेगी, हाँ मिलेगी, 4 साल के बाद क्या करूंगा वगैरह, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर आउट ऑफ योर पैशन, यू आर डूइंग इट समथिंग एल्स कि फिर क्या होगा कैसे होगा. आई नो पेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट सिक्योरिटी वगैरह लाइफ के लिए, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आपको सिक्योरिटी मिल सकती है. So for aspirant and जो भी जितने भी youngsters हैं, just focus on how to join the force. That's it. The defense forces are competent enough to take care of yourself. If you are competent enough, you will through after 4 years you will be doing a normal job. जैसे after जितने बाद जो भी pension level services होता है आप कर लोगे. If you are not, you will be given lot of options. Other options भी हैं आपके. 4 साल के बाद बहुत सारी चीजें करोगे. 17 से जो 23 साल का इनका जो है, 21 साल का भी प्रॉब्ली, इसमें तो ग्रेजुएशन होता है लोग, है ना. तो बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मतलब मेरे टाइम पे अगर ये आती तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन, क्योंकि मैं कॉलेज में इतने वैसे ही इतने डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं. मतलब उस यंग एज में मैं तो जाके कश्मीर में जाके मैं एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ चीजों को, एंड उसके साथ ग्रेजुएशन भी हो जाएगा मेरा. ऑफ कोर्स मतलब बहुत देर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज विल गिव यू अ डिग्री. उसके बाद आई कैन अगेन जॉइन द फोर्स एज एन ऑफिसर. आई कैन जॉइन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आल्सो, क्योंकि 21 के बाद आपके पास 4 साल होते हैं. Exactly, sir. Yeah, so it's a fantastic opportunity. Again मैं वही तो बोल रहा हूँ, there are so many people who could not join the forces. आपको एंट्री मिली, हाँ किसी ने अगर आपको एंट्री रोक दी है बिकॉज ऑफ एज क्राइटेरिया वगैरह, वो जो इनिशियल में इन्होंने एक्सटेंशन दिया था, जो लॉकडाउन में जब इनका रिक्रूटमेंट रुक गया था, तो दे हैव एक्सटेंडेड द एज लिमिट फॉर 2 years. सो जस्ट जॉइन द फोर्सेस फॉर पैशन, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर पेंशन. डेफिनेटली. Very right, sir. Yeah. So Arpit is asking, I think Arpit, you are asking about the preparation. You can DM me if you want guidance for NDA exam or like that. Okay, because the same question you have asked. Okay, sir. I think we have covered most of the questions now, and yes. Anyways, we can take, and you can always DM me. We can have one more live sessions in between. Sure, And, sure, sir. It was really lovely interacting with you, Ankush, and I'm really appreciating whatever you're doing for opening these channels, this platform for all the youngsters, for aspirants. And मैं सबको मैं request करूँगा कि this is an opportunity, you just take it, okay? And Yes. it's really appreciated, Ankush. So, Thank you. Sir. yes. Okay, sir. Sir, it was a nice interaction, and thank you so much for giving your valuable time. Yes. And you shared your experience with all the aspirants, and you clarified all the doubts. I'm more than happy. Yeah. Yes. I'm more than happy, Yes. and we'll have a keep in touch in future. Whatever, if you want, I can have any random live sessions also. And keep in touch. And for all the aspirants, all the best. Do well. साहस की हमेशा विजय होती है. अगर बलिदान लगाना है तो कमिटमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है. तो बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाओ. तो तैयारी अगर आपकी पूरी है तो कोई नहीं रोक सकता आपको. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो. ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू अंकुश, एंड होप टू सी यू सून अगेन. चलो, Sir, okay. Jai Hind. time to sign off. Yeah, Jai Hind. Thanks.